Hello students, I Harshita Parekh welcomes you again in my online study classes. I am back here with the topic coordination compounds. This is our fourth lecture of the coordination compounds. In previous lectures, we have discussed about the general introduction of the coordination compounds, about Werner theory and about types of ligands also. Now, in today's lecture, we will discuss about the topics coordination polyhedron, about homoleptic in the heteroleptic complex, oxidation number, coordination number. Other than that, we will discuss about the naming IUPAC nomenclature of the coordination compounds, जो कि बहुत important हमारे लिए है. Now, if we'll just talk about the first topic of today's class, तो हम जो है वो बात करते हैं about the coordination polyhedron. Coordination polyhedron firstly. Yes, what is coordination polyhedron? होता क्या है meaning coordination polyhedron से? If I just talk about the coordination polyhedron, sorry, wait for a second. Yes, coordination polyhedron की अगर हम बात करें तो coordination polyhedron आपके पास में this is the arrangement of the ligands with metal in the three-dimensional space. 3D स्पेस के अंदर ligands metal के साथ में किस मैनर से किस अरेंजमेंट में अटैच कर रहे हैं, that is the coordination polyhedron, right? तो चलिए बात करते हैं coordination polyhedron की. This is the arrangement of ligands which is attached with metal atom or ion in three-dimensional space. थ्री-डायमेंशनल स्पेस में लिगेंड मेटल के साथ में किस मैनर से अटैच कर रहा है, दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. नाउ नंबर ऑफ लाइगेंड्स जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि किस मैनर में जो है वो आपके पास में अरेंजमेंट हो सकता है या लाइगेंड जो है वो अटैच कर सकते हैं विद द मेटल. सो बात करते हैं क्या क्या यहाँ पर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का फॉर्मेशन हो सकता है. द ज्योमेट्री विल बी और द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन विल बी ऑक्टाहेड्रल. देखिएगा ऑक्टाहेड्रल आपके पास में किस तरह से अरेंजमेंट होगा, व्हेन द कोऑर्डिनेशन नंबर व्हेन द CN is 6 या आपका है नंबर ऑफ द लाइगेंड्स विच इज अटैच्ड विद द मेटल. मेटल से अगर 6 लाइगेंड्स अटैच कर रहे हैं तो आपके पास में किस तरह की ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का फॉर्मेशन होता है, ऑक्टाहेड्रल पॉलीहेड्रॉन विल बी फॉर्म हियर. मेटल इज अटैच्ड विद 4 ligands in the same plane. These are 4 ligands which is attached with the same plane, which is attached in the same plane. These are the ligands. जबकि 2 ligand जो है वो आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे, आउट ऑफ द प्लेन प्रेजेंट होंगे, जिसमें कि एक जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, above the plane present है, another one is present below the plane, right? This is a octahedral coordination polyhedron when the metal is attached with the 6 ligands. तो आपके पास में इस तरह का ज्योमेट्री octahedral ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है. Now let's just talk about the CN number 5. If the coordination number is 5, 2 type of the geometry can be possible here. 2 तरह के coordination polyhedron का formation हो सकता है. कौन कौन से हैं? These are trigonal, bipyramidal, or it can be square pyramidal. पहले trigonal pyramidal की बात करते हैं, in which metal is attached with the 3 ligands in a plane. वाइल अगेन ये ट्राइगोन बनाते हुए अगेन 2 लाइगेंड जो है वो आपके आउट ऑफ द प्लेन जो है वो प्रेजेंट होंगे. एक अबव द प्लेन प्रेजेंट है, एक बिलो द प्लेन प्रेजेंट है. एंड दिस इज द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल
शेप स्ट्रक्चर या आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5 अनदर स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म हियर, और वो आपके पास में होगी स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल का फॉर्मेशन भी हो सकता है जिसमें मेटल जो है वो 4 लाइगेंड्स के साथ में विद द 4 लाइगेंड्स प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। मेटल इज अटैच्ड विद द 4 लाइगेंड इन द सेम प्लेन व्हाइल 1 लाइगेंड इज प्रेजेंट अबव द प्लेन। और इस तरह से आपके पास में जो है वो फॉर्मेशन किसका कर रहा है, दिस इज द पिरामिडल स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिडल है। ये ट्राइगोन है, ट्राइगोन पे ऊपर और नीचे की तरफ जो है वो 2 पिरामिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मींस ट्राइगोनल bipyramidal, and this structure is octahedral structure, right? Now if the coordination number is 4 तो आपके पास में जो है वो किस किस तरह का कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन फॉर्म हो सकता है। देखिए 1 कैन बी स्क्वायर, स्क्वायर जो है वो आपके पास में हो सकता है स्क्वायर प्लेनर। दिस इज अबाउट द स्क्वायर प्लेनर वेयर 4 ligands are attached in the same plane with the metal, right? 4 लाइगेंड हैं, चारों के चारों एक ही प्लेन में, मेटल जिस प्लेन में प्रेजेंट है वहीं प्रेजेंट है। मेटल से 4 लाइगेंड्स अटैच कर रहे हैं इन द सेम प्लेन। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैन बी पॉसिबल हियर, स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। इसके अलावा एक और ज्योमेट्री का फॉर्मेशन हो सकता है इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, या आप ये कह दें इफ 4 लाइगेंड्स आर अटैच्ड विद द मेटल। तो जो ज्योमेट्री फॉर्म हो सकती है, जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बनता है, वो आपके पास में हो सकता है टेट्राहेड्रल। It can be tetrahedral. It means when the coordination number is 4, 2 type of the polyhedron can be formed, tetrahedral or the square planar. When the CN number is 5, when the 5 ligands are attached with the metal, again 2 type of the polyhedron can be formed here. एक होगा आपके पास में trigonal, bipyramidal, and the another one will be square pyramidal. If the CN number or the ligand is 6, then octahedral polyhedron will be formed here. चलिए टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। where the metal is attached here, ये आपके पास में कोई भी 2 लाइगेंड हैं, राइट? these ligands are in the plane, 2 और होंगे जो आउट ऑफ प्लेन होंगे। एक होगा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, this is towards observer and another one will be away from the observer. This is the tetrahedral polyhedron which is formed when the metal is attached with the 4 ligand. तो 2 तरीके के polyhedron का formation हो सकता है, either square planar or tetrahedral, right? This is about the coordination polyhedron. आगे बात करते हैं, keep watching. Yes, next is homolaptic and heterolaptic complex. What we mean by the homolaptic and the heterolaptic complex? Homo means same से मानिए आप, and hetero means different. When all the ligands which is attached with the metal are same, तो वो आपके पास में होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। होमोलैप्टिक की पहले बात कर लेते हैं। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, व्हाट आर द होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स? व्हेन all the ligands which is attached with metal are same, then the complex will be homolaptic complex. जितने भी मेटल के साथ में जितने भी ligands अटैच हैं, if all the ligands are of same type, तो homolaptic complex का formation होता है। एग्जाम्पल की बात कीजिए, देखिएगा what will be the example here? K4 Fe
CN6 की बात कर लीजिए, दैट इज पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट की बात कर लीजिए, K4FeCN6. दिस इज द कॉम्प्लेक्स हेयर वेयर दिस इज मेटल, लाइगेंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड दिस इज द काउंटर आयन, या आप बोल सकते हैं आयोनिक स्फीयर है, राइट. हेयर द मेटल इज अटैच्ड विद द सेम टाइप ऑफ लाइगेंड, 6 लाइगेंड्स के साथ अटैच कर रहे हैं एंड ऑल द 6 लाइगेंड्स आर सेम हेयर, CN है. दिस इज एग्जांपल ऑफ द होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स. होमो मीन्स आप हमेशा ध्यान रखिएगा सेम, while the word hetero mean different, right. What is same here? The number of the ligands की अगर हम बात करें, जितने भी ligands अटैच कर रहे हैं, if all the ligands attached with the metal are same, then the complex will be homolaptic. While when the different ligands are attached with the metal, तो आपके पास में heterolaptic complex जो है वो होगा. दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, CO and H3 whole 6 3+. This is also the example of the, ये भी आपके पास में क्या है, दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. देखिए दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज था उसको काउंटर आयन ने बैलेंस किया है, जबकि यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं प्रेजेंट है. दैट इज वाई चार्ज जो है वो यहाँ पर है, चार्ज जो है वो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. The coordination sphere can be neutral, it can be negatively charged or it can be positively charged. यहाँ पर ये positively charged जो है वो coordination sphere है, in which cobalt metal is attached here with the amines. NH3 जो है वो ligands के साथ में attach कर रही है and all the ligands which is attached with the metal are same, then this is said to be homolaptic complex. चलिएगा आगे बात करते हैं about the heterolaptic complex. Yes, heterolaptic complex. When all the ligands which is attached with metal are not same. जो भी लाइगेंड अटैच कर रहा है सारे के सारे सेम नहीं है, तो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा. while all the ligands which is attached with the metal, if they are same, तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसका, दिस इज CO NH3 whole 4 Cl and O2. If we'll just talk about this type of the complex, have a look. ये ligand है, this is ligand and the ligand. Here 3 ligands are attached, 3 different ligands are attached with the metal. तो ये किसका हुआ? This will be the example of the heterolaptic complex. ये heterolaptic complex के लिए आपके पास में जो है वो example होगा. एक और एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, Cr whole twice of En and the Cl2. This will also the example of the heterolaptic complex जो है वो ये आपके पास में है. Here बात करिए, मेटल इज क्रोमियम, En that is इथाइलिन डायमीन, जिसका आजकल जो है वो नेम यूज किया जाता है IUPAC, इथेन 1,2-diamine, and the chloro ligands are attached here with the metal. 2 different types of the ligands are attached here. One is ethane 1,2-diamine and the another one is chloro. This type of the compounds are the example of the heterolaptic complex, जहाँ पे different ligands attach कर रहे हैं metal के साथ में, and if all the ligands are same, then the complex will be homolaptic complex. चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं. Yes, next topic is coordination number. Coordination number. We can say that
Cn ऑल्सो, कोऑर्डिनेशन नंबर को Cn से भी रिप्रेजेंट जो है वो किया जाता है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? तो आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ द मोनोडेंटेट लिगैंड विच इज अटैच्ड विद द मेटल। मेटल कैसे? मेटल के साथ में जितने भी लाइगेंड्स, मोनोडेंटेट लाइगेंड्स अटैच कर रहे हैं, दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल। अदर देन दैट आप कोऑर्डिनेशन नंबर को जो है वो ये भी बता सकते हैं कि कोई भी मेटल जो है वो लाइगेंड्स के साथ में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है, दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। Cn आपके पास में होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? देखिए, नंबर ऑफ monodentate ligands which is attached with central metal atom or ion is coordination number, right? Number of the monodentate ligands which is attached with the metal, वो आपके पास में जितने भी ligand attach हैं, monodentate ligand attach हैं, उतना ही coordination number जो है वो होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है that number of coordination bonds, number of coordination bonds which is formed by metal with ligands। मेटल लाइगेंड्स के साथ में कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर, और द नंबर ऑफ द मोनोडेंटेट लिगैंड विच इज अटैच्ड विद द मेटल। मेटल से कितने मोनोडेंटेट लिगैंड अटैच कर रहे हैं, या आप कह दें कि कोई भी मेटल जो है वो कितना बॉन्ड बना रही है, कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रही है विद द लाइगैंड्स, दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये उस केस के लिए है जहां पे मोनोडेंटेट लाइगैंड्स अटैच कर रहे हैं, व्हाइल दिस इज द केस व्हेन मल्टीडेंटेट लाइगैंड्स आर अटैच विद द मेटल। चलिएगा, निकाल कैसे सकते हैं आप कोऑर्डिनेशन नंबर? दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट Cn, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। आप इसमें नंबर ऑफ लाइगेंड्स मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, number of the ligands multiplied by density. By this formula we can calculate the Cn here. एग्जाम्पल लीजिएगा, एग्जाम्पल K4 Fe Cn6, this is the complex here, potassium hexacyanoferrate। अगर आपको यहाँ पे बात करनी है अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Cn कितना होगा? हैव अ लुक हियर, हाउ मेनी लाइगेंड्स आर अटैच्ड हियर? 6 लाइगेंड्स आर अटैच्ड हियर विद द मेटल, और 6 के 6 लाइगेंड्स जो जुड़े हुए हैं, दैट इज Cn, एंड Cn इज मोनोडेंटेट लाइगेंड एज वी ऑल नो। तो कितना? 6 विल बी द number of the ligand multiplied by density, that is 1, and it will be 6 here. For this complex metal के लिए जो Cn है, coordination number है, that will be 6 here in this complex K4FeCN6। और एग्जाम्पल लेते हैं, wait for a second, yes, और एग्जाम्पल की बात करते हैं, have a look, CO NH3 whole 6 Cl3 CO En whole thrice Cl3 Ni Cn whole 4 2 minus. These are 3 complexes here. Try to calculate the Cn here. Cn को जो है वो कैलकुलेट करने का एक बार सेल्फ जो है वो ट्राई कीजिए. Here try to do
आई होप हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो यू कैन स्टॉप द वीडियो और उसके बाद जो है वो आप इसको चेक कर सकते हैं। हैव अ लुक हियर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी बात की थी, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ द मोनोडेंटेड लाइगेंड्स मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। इस फॉर्मूला से जो है वो आप निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हैव अ लुक, अमोनिया नंबर ऑफ द ligands 6 here, 6 मल्टीप्लाई बाय अमोनिया, अमीनो जो है वो आपके पास में क्या है, दिस इज मोनोडेंटेड ligand। अमीनो इज द मोनोडेंटेड ligand, तो इसके लिए आपके पास में CN जो आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो 6 आएगा। For the next complex, have a look. The EN, that is ethylene diamine या ethane 1,2-diamine is the IUPAC name of this ligand. EN has the IUPAC name ethane 1,2-diamine या ethylene 1,2-diamine, कुछ भी बोलिए आप। हालांकि अकॉर्डिंग टू द न्यू रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC इसका IUPAC नेम काम में लिया जाता है, that is ethane 1,2-diamine. Have a look. The number of ligand is 3 multiplied by density. En ethylene diamine is bidentate ligand and it will 6 again. The coordination number is 6 here. Again 6 ही आया है। Have a look in the next case. यहाँ पर आपके पास में number of the ligand is 4 multiplied by the density, that is 1 here. It is 4. Coordination number इन दिस केस, थर्ड केस के लिए, थर्ड कंपाउंड के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया है वो 4 है, while the coordination number for the first and the second compound कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया है, 6 आया है। सो दिस इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कि आपके पास में होता क्या है, नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल एंड द लाइगेंड्स। निकाल कैसे सकते हैं, नंबर ऑफ द मोनोडेंटेड लिगेंड्स या जितने भी मोनोडेंटेड में लगाइए, नंबर ऑफ द लाइगेंड्स मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी विल बी द फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लेते हैं, कीप वॉचिंग। Yes, next topic is oxidation number of central metal. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, आप हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किसका साइन करते हैं, ऑफ द सेंट्रल मेटल। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज द एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स। वो आपके पास में ऑक्सीडेशन नंबर होता है, दिस इज द एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पे प्रेजेंट एक्चुअल चार्ज, सॉरी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट मेटल पर एक्चुअल चार्ज कितना है, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट सेंट्रल मेटल। अब हम बात करते हैं, ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा होता है इन चैप्टर नंबर 11 रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। फिलहाल वापस से बात करते हैं। सपोज दैट एग्जाम्पल लीजिए, K4FeCN6 here. This is the compound पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट है ये। अगर आपको यहाँ पे बात करनी है ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, तो असाइन किसका करेंगे, ऑफ कोर्स हियर आयरन इज द मेटल हियर, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो असाइन होगा। Now we'll just talk about the oxidation number, how we can calculate, how we can assign the oxidation number। तो देखिएगा, the iron is the metal of D block and D block metal shows the variable valency, ये हमें पता है। D block की metals variable valency जो है वो शो करती हैं। तो आपके पास में यहाँ पर जो है वो इसी मेटल का आपको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको असाइन करना है उसे आप x मानिए, बाकी सबका जो है वो आप ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज जो है वो ऐड कर दीजिए एंड द सम टोटल विल बी 0। और इस तरह से आप एक इक्वेशन फॉर्म कीजिए, सॉल्व कर लीजिए एंड वी कैन असाइन द वैल्यू ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। यार चलिए काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पोटेशियम, potassium has the charge +1, right? This belongs with the first group and for the first group, right? Hydrogen
lithium, sodium, potassium all belongs with the first group and all the members of the first group have the charge +1. यहाँ आप बात कीजिए, it has 19 electrons. पोटाशियम आपके पास में 19 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 2, 8 एंड 9 होगा. टू कंप्लीट द ऑक्टेट इट वांट टू रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल अटेन द चार्ज +1 चार्ज जो है वो ये अटेन करेगा. या आप 1s2 वाले सिस्टम से देख लीजिए, 1s2, 2s2, 2p6 दैट इज 6 + 2 8 + 2 10, राइट. 9 electrons are remaining now. वो कहाँ जाएंगे? in the 3s2, 3p6 and 4s1. This is the electronic configuration. This is 10 plus 8 18 plus 1 19. Now to complete the octet, to attain the electronic configuration like of nearest noble gas, उसके जैसा जो है वो that is of argon. Ar के जैसा electronic configuration attain करना चाहेगा according to the octet rule. That is why it will lose 1 electron and it will show the charge +1. Potassium +1 का जो है वो charge show करता है, तो +1 this is the charge of potassium. लेकिन दिस इज द चार्ज ऑफ 1 पोटाशियम. हेयर टोटल 4 पोटाशियम्स आर प्रेजेंट हेयर. तो आपने यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से. चार्ज मल्टीप्लाई बाय द नंबर, राइट. चार्ज ऑफ पोटाशियम इज +1. द नंबर ऑफ द पोटाशियम इज 4 हेयर, तो मैंने +1 मल्टीप्लाई बाय 4 किया. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आयरन. आयरन का आपको नहीं पता, इसी का तो असाइन करना है. जिसका असाइन करना है x मानिए प्लस Cn. If we'll just talk about the Cn आपके पास में नेगेटिव लाइगेंड है and it has a charge -1. Cn माइनस जो है वो आपके पास में होता है, it has the charge -1 on 1 Cn मॉलिक्यूल. एक Cn लाइगेंड के ऊपर चार्ज है आपके पास में -1. टोटल 6 Cn आर प्रेजेंट हियर, इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 6 आप कर दीजिए एंड द सम टोटल विल बी 0. इसको सबको जो है वो चार्ज को लिखिए. आफ्टर दैट इनका सम टोटल जो है वो 0 के इक्वल होगा. नाउ दिस इज द इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन है. इजीली इसको सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कीजिए एंड दैट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द मेटल यार. हैव अ लुक. इट इज 4 + x - 6 is equals to 0. It will be 6 - 4. It will be +2 here, right? Equals के opposite side जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. It will be x is equals to +6 - 4. That will be +2. As oxidation number is +2 here in this case. K4 FeCN6 इस कॉम्प्लेक्स में मेटल जो है वो चार्ज कितना शो कर रही है, या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना है, +2. एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? द एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो आपके पास में ऑक्सीडेशन नंबर होता है. तो ऑक्सीडेशन नंबर फॉर आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स इज +2 हेयर. चलिए आगे जो है वो एक दो और कंपाउंड को जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं. वेट फॉर अ सेकेंड. Yes, next example is CO En whole twice Cl2 NO3. This is second complex here जहाँ पे कि आपको मेटल के लिए, what is metal here? कोबाल्ट इज मेटल here. आपको मेटल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो असाइन करना है. आई एम गिविंग यू टाइम, ट्राई टू डू इट सेल्फ. यस, ऑक्सीडेशन नंबर आपको जो है वो हेल्प करने वाला है इन द नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर जब नेमिंग आप करेंगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो काम आएगा. दैट इज व्हाई ये आपके पास में जरूरी है, ये आपको आना ही चाहिए. प्रैक्टिस आप कीजिएगा, सारा जो है वो हो जाएगा. वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू क्लियर हियर. टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर आपको चार्ज ऑन द लाइगेंड पता होना चाहिए और उसके लिए आपको टेबल जो हमने बताई थी इन प्रीवियस लेक्चर्स, जो टेबल आपको बताई गई थी वो टेबल आपको जो है वो लर्न होनी चाहिए. तो पहले आप जो है वो टेबल लर्न कीजिएगा, उससे आप ऑक्सीडेशन नंबर भी बता सकते हैं और उसी का यूज जो है वो आपके पास में आएगा इन द नेमिंग. नेमिंग की जब भी हम बात करेंगे इन नेक्स्ट क्लास, बिकॉज आज तो मुझे लगता है टॉपिक ज्यादा लंबा चला जाएगा, दैट्स व्हाई विल डिस्कस द नेमिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट क्लास एक सेपरेट वीडियो जो है वो हम बनाएंगे ऑन नेमिंग.
वहां उसको करने से पहले आप सेल्फ जो है वो एक बार टेबल जो है वो लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आपको टेबल लर्न रहेगी तो आपके पास में नेमिंग करना जो है वो इजी होगा, अदरवाइज आपको डिफिकल्टीज आएगी। सो फर्स्टली लर्न द टेबल ऑफ लाइगेंड, उस पे चार्ज कितना है, उसका नेम क्या है एंड ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आप जो है वो इजीली नेमिंग कर पाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर पाएंगे। आई होप ये अब तक कंप्लीट हो गया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस। कोबाल्ट इज द मेटल हेयर, और आपको मेटल का ही जो है वो एक्चुअल चार्ज पता करना है, ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। जिसका नहीं पता है x मानिए प्लस En, दैट इज इथिलीन डायमीन, एंड इथिलीन डायमीन इज द न्यूट्रल लाइगेंड multiply by the number charge on the ligand multiply by the number of the ligands. Chlorine that is chloride here, इस पे माइनस का 1 चार्ज होता है, Cl माइनस। ऑल द हैलोजेंस आर प्रेजेंट हेयर इन द फॉर्म ऑफ लाइगेंड, तो वो सारे के सारे हैलाइड्स होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड द फ्लोराइड एज वेल। इन पे माइनस का 1 चार्ज है। देयर आर 2 क्लोरीन multiply by 2 minus 1 multiply by 2, okay, plus nitrate that has the charge minus 1 is equals to 0। आप सम टोटल जो है, एक और तरीका होता है, पहले आप इसे आयनाइज करवाइए, आयनाइज करवाने के बाद में जो है वो आप टोटल जो भी चार्ज है ऑन द कॉम्प्लेक्स उसको जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल्स की तरह पे, बट वो थोड़ा सा ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। ये इजी है, आप सबका चार्ज जो है वो लिख दीजिए, टोटल कर दीजिए 0, राइट। ओके, नाउ डू दिस। x प्लस इट विल बी 0, इट विल बी माइनस 2, x माइनस 2 minus 1 means is equals to 0, x will be plus 3 here, plus 3 will be the oxidation number of cobalt metal here. So this is about the oxidation number of different of the metals in the different of the compounds. आप इन्हें सेल्फ जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। आई एम टेकिंग ओनली 2 एग्जाम्पल्स हेयर। इससे आगे का जो है वो हम डिस्कस करते हैं अब हमारी क्लास में। आप अपने आप जो है वो बुक में से एग्जाम्पल्स लीजिएगा और उनमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो असाइन करने का ट्राई कीजिएगा। कुछ नहीं करना होता, जो भी मेटल है जिसके लिए असाइन करना है उसे x मानिए, बाकी सब लाइगेंड्स का वैल्यू आपको जो है वो लर्न होना चाहिए। चार्ज ऑन द लाइगेंड्स ये जो है वो आपको लर्न करना पड़ेगा कि इथेन 1,2-diamine is neutral ligand while the chloro has -1 charge। तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय द, देखो चार्ज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लाइगेंड, चार्ज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लाइगेंड, और ये जितना भी आपके पास में आयन है उन सबको जो है वो सम टोटल कीजिए, इक्वल्स टू 0 रखिए, और इस तरीके से आप क्या पता कर सकते हैं, वी कैन असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर यार। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ओके, या एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स देती हूँ, आप उनके लिए जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने का ट्राई कीजिएगा। यस, दीज आर द क्वेश्चंस जिनमें आपको जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पता करना है ऑफ द मेटल। दिस इज होमवर्क फॉर यू, आप जो है वो इसको ट्राई कीजिएगा, इसमें जो है वो मेटल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो असाइन कीजिएगा। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट विल बी द EAN, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कीप वॉचिंग। यस, नेक्स्ट इज EAN rule. Here is a rule, EAN rule. What we mean by EAN? That is effective atomic number. EAN is effective atomic number and EAN rule is effective atomic number rule. What is EAN rule? क्या कहता है ये? According to this rule, that complex will be highly stable in which the metal have effective atomic number equals with the atomic number of the any of one noble gas। कोई भी कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें कि मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो, किसी भी नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो, एटॉमिक नंबर ऑफ एनी noble gas। If the
EAN of metal is equals with the atomic number of any noble gas, then the complex will be highly stable, and this rule is effective atomic number rule or EAN rule. EAN क्या होता है ये असाइन करना सीखेंगे आगे, फिलहाल हम रूल की बात करते हैं. According to this rule, that complex has high stability in which metal has EAN value equals with the atomic number of any noble gas. EAN value of metal, if this is equals with the atomic number of any noble gas, then the complex will be highly stable. और यही आपके पास में है EAN रूल. आगे हम बात करते हैं कि EAN आपको जो है वो कैलकुलेट कैसे करना होता है. कीप वॉचिंग. Yes, the formula to assign EAN is Z minus oxidation number plus 2 into Cn. This is the formula by which we can calculate the effective atomic number. किसी भी मेटल का effective atomic number जो है वो इस formula से बता सकते हैं. Where Z is atomic number of that metal, atomic number of metal जिसके लिए आपको EAN value पता करनी है. ON, that is oxidation number of metal, अभी हमने ये निकालना सीखा था. प्लस 2 into Cn. Cn is the coordination number यार. Atomic number minus oxidation number plus 2 into coordination number. By this formula we can assign the EAN, and if the effective atomic number is equals with the atomic number of any noble gas, then the complex will be highly stable. ये है EAN rule. चलिए बात करते हैं किसी complex की. EAN जो है वो निकालते हैं of the metal. Yes, example is CONH3 whole 5 CO3. This is the complex here. ये आपके पास में कोई जो है वो complex है. काउंटर आयन यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होगा. Cl, right? Yes, I hope आपको जो है वो periodic table याद होगी. And this is the member of 3D. 3D जो है सीरीज का ये member है cobalt, and it has the atomic number 27. The Z is 27 here. Oxidation number आप जो है वो निकालिए. X plus NH3 has 0 charge, 0 by multiply by 5 plus CO3. चलिए बताइएगा CO3 के ऊपर कितना जो है वो चार्ज होता है. दिस इज द कार्बोनेट. CO3 माइनस आपके पास में जो है वो होगा प्लस -1. दिस इज द चार्ज ऑन द क्लोराइड. दिस इज X equals with 0, X is equals to X plus 0 minus 2 minus 1, it will be -3. ये आपके पास में X is equals to +3 आएगा. +3 is the oxidation number here. So oxidation number is +3. effective न्यूक्लियर चार्ज आपको निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको निकालना है. इट हैज द फॉर्मूला Z is 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +3 +2 मल्टीप्लाई बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर. चलिए Cn नंबर बताइए कितना है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर. द नंबर ऑफ द लाइगेंड्स व्हिच इज अटैच्ड हियर. ये आपके पास में 5 + 1 6 लाइगेंड्स आर अटैच्ड हियर. तो Cn इसके लिए जो है वो 6 आएगा. राइट. ओके. EAN विल बी 27 minus 3 plus 2 into 6.
it will be 27 minus 3 plus 12, 39 minus 3, it will be 36 here. And 36 is the atomic number for krypton here. The effective atomic number is equals with the atomic number. Yes, effective atomic number is equals with the atomic number of the noble gas. That is why this complex is highly stable. यही आपके पास में EAN को जो है वो निकालना है. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं. That is FeCO whole 5. Try to do this. यस, आई होप हो गया होगा. अगर किसी का नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप वीडियो को स्टॉप करके जो है वो पहले कंप्लीट कीजिएगा. आफ्टर दैट अपना जो नंबर है EAN उसको चेक कीजिएगा. सो हैव अ लुक व्हाट विल बी द सॉल्यूशन हियर. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स विद द Z. दिस इज एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल 26. ऑक्सीडेशन नंबर इज FeCO होल 5. इसके लिए निकालना है, जिसके लिए निकालना है x मानिए प्लस द चार्ज ऑन द CO. CO इज कार्बोनिल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. 0 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवरऑल 0 के इक्वल होता है. इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 हेयर. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ iron of metal is 0 here in this case. Cn, that is coordination number. Number of the ligands which is attached. कितना? 5 ligands are attached here with the iron. So this is 5. चलिए वैल्यू पुट कीजिए. 26 minus 0 plus 2 into 5. It is 36. And 36 again atomic number of krypton. If the EAN effective atomic number is equals with the atomic number of any noble gas, then the complex will be highly stable. और ये complex भी आपके पास में EAN रूल को फॉलो करने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेबल होगा. So this is about the EAN rule, homolaptic heterolaptic complex, coordination number, oxidation number, coordination polyhedron. Now I am just finishing this class by this topic. और हम जो है वो आने वाली क्लास में बात करेंगे नॉमेनक्लेचर का. एंड आई होप आप नॉमेनक्लेचर से पहले लाइगेंड को जो है वो टेबल को आप अच्छे से जो है वो लर्न कर लेंगे ताकि आपको करने में जो है वो मजा आए. आई होप यू एंजॉय दिस क्लास. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच. बाय.